ہم آج بات کریں گے سب سے پہلے کہ ماشاءاللہ سے مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے بہت لوگوں کی مدد کی اور جیسا کہ مارپانی صاحب نے کہا کہ ہم جتنا کر سکتے تھے ہم نے اپنی طرف سے ایفرٹ پہ حصہ ڈالا. تو ابھی صورتحال کافی شکر ہے کہ کنٹرول میں ہے اور بہتر ہو گئی ہے کافی زیادہ. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ اب ریسورسز الیکشن کا دور ہے. obviously یہ بھی ساتھ ساتھ میں کہتی چلوں کہ میرے پاس بہت ریکویسٹ آ رہی ہے اس بات کی کہ الیکشن کے بارے میں بات کروں اور ضرور کہوں یہ بات کہ پلیز گو اینڈ ووٹ. اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو ضرور ووٹ دیں. جو آپ سمجھتے ہیں ہماری کمیونٹی کے لیے بہتر ہے اس کو آپ ووٹ دیجئے, لیکن ووٹ ضرور دیں. بہت لمبی لائنز ہیں. ہاں ماشاءاللہ میں 2 دفعہ گیا اور 1 گھنٹہ سے زیادہ رکا, لیکن بہت رش ہے ماشاءاللہ. یہ پہلی دفعہ نظر آیا ہے ایسا نظر کہ لوگوں میں اتنا زیادہ شعور آ گیا ہے, اور یہ اچھی بات ہے. ہر شخص نے, چاہے کوئی بھی ہے, ہم میں سے ہو یا باہر سے, ہر ایک کو اپنا ووٹ دینا چاہیے. اور اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں اور ہمارے آنے والی جنریشن کی زندگی میں انقلاب آئے گا, کیونکہ ہر روز نئے نئے مسائل بھی ہوتے ہیں, اور ہمارے الیکٹڈ اور سلیکٹڈ جو بھی بندے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں سارا کام کرنا یا ہمارے لیے مدد مہیا کرنا ہوتا ہے. تو آپ یہ اپنی ایک باقاعدہ ذمہ داری سمجھیں کہ ہمیں جا کے ووٹ دینا ہے. کوئی ضرور نہیں ہے کہ کوئی کہے اس پہ جائے, آپ اپنا ججمنٹ کریں, اپنا ریسرچ کریں, لیکن یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. نہ کہ صرف یہ نیشنل الیکشنز ہے, بلکہ آپ اپنے اداروں میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ جو ہمارے فنڈ سے چل رہے ہیں اور ان کے بھی الیکشن ہر سال میں ہونے چاہیے, اور جن کے ہو رہے ہیں اس پہ بھی نظر رکھیں, کیونکہ ہم ان سب اداروں کو پیسے دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ڈونیشن دے رہا ہوں تو میں کسی کی مدد کرنے کے لیے دے رہا ہوں. زکوٰۃ اگر دیے تو میں نے حقداروں کو دینے کے لیے دیے, اس کو مس یوز یا ویسٹ کرنے کے لیے نہیں دی. ہم نے سب نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں. جو لوگ الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ صاف نیت سے آ رہے ہیں, اور سب لوگ کام کریں. اس کرنے کے لیے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور ماشاءاللہ جیسے فرح نے کہا کہ کووڈ-19 میں ماشاءاللہ بہرحال ابھی بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ گرین میں آ گئے تو ختم ہو گیا. ابھی جیسے موسم بدل رہا ہے کووڈ کے, دیکھیں نا آج کی جو رپورٹ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکسس میں جو ہے 8,64,000 کیسز اب تک آئے ہیں, اور تقریباً 17,600 ڈیتھ ہوئی ہے. اسی طرح پورے امریکہ میں 8.14 ملین جو ہے وہ کیسز رجسٹر ہوئے, اور تقریباً 2,19,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور یہ ابھی ختم نہیں ہوا. آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ ماسک آپ کا سب سے بڑا ٹول ہے, آپ ماسک لگائیں. روزانہ آپ سینیٹائزر ساتھ دو, صابن سے دھونے میں 20 منٹ لگتے ہیں. یہ آپ کو سینیٹائزر استعمال کرنا ہے, آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, یہ بہت ضروری ہے. بہرحال زندگی کے معمولات شروع ہو چکے ہیں, ریسٹورینٹ بھی ماشاءاللہ شروع ہو چکے ہیں, ریسٹورینٹ کے باہر بھی لوگ ٹیبل لگا کے کام شروع ہو گیا. تو ہم سب نے اپنی روزانہ کی زندگی کو آہستہ آہستہ نارملائز کرنا ہے, لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ. That's so true. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی آپ سے, مارپانی صاحب شیئر کروں گی اس بات کو اور اپنے ناظرین کے ساتھ بھی, کہ کل ایک واقعہ سمجھ لیں یا ایک بات میرے کان سے گزری. میں نام نہیں لوں گی کسی کا بھی, لیکن ایک بات کا بہت خیال رکھیں, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ اویئرنیس بھی کمیونٹی میں بڑھے, چاہے الیکشن کے حوالے سے ہو, کسی بھی حوالے سے ہو. میرٹ کا خیال رکھیں, میرٹ پر لے کر آئیں لوگوں کو. میرٹ کے بغیر ذاتی تعلقات پر یا کسی اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا کسی اور کے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو کسی پوزیشن پر نہیں متعین کریں, ان کو نہیں سپورٹ کریں. دیکھیں کہ میرٹ کیا ہے, کیونکہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے ایز اے کمیونٹی, اگر ہم نے اپنی بچوں کے لیے, اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے کام کرنا ہے, تو وی ہیو ٹو گو آن میرٹ. اگر میرٹ پر لوگوں کو نہیں لے کر آئیں گے تو یہ اسی طرح ہوتا رہے گا, یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. کچھ لوگوں نے ایسا بھی کہا کہ جی ہم یہ کبھی چینج نہیں ہوگا, ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنے حصے کی آواز اٹھائیں, آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنے حصے کی آواز اٹھائیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور آواز ملائے گا ضرور, لیکن میرٹ کے اوپر اعتراض کریں. اگر کوئی میرٹ پر نہیں ہے اعتراض کریں اس کے اوپر. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ نہیں, بالکل صحیح فرمایا. دیکھیں کہ یہ ہمارے حقوق ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے, اور یہ رائٹ کو نہ استعمال کرنا میری نظر میں گناہ ہے. ہم نے پوری ایمانداری سے اپنے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, کیونکہ اس میں بہت زیادہ مدد اور ہماری زندگی کے روزانہ کے معمولات شامل ہیں. ہمارے بچوں کی اسکول ہے, ہمارے محلوں میں سرویلنس ہے, ہمارے ہاسپٹلس ہیں, کلینکس ہیں, ہمارے اور معاملات ہیں, ہمارے امیگریشن کے معاملات ہیں, ہمارے قانونی معاملات ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ کوئی
सॉल्यूशन के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, तो हम उन लोगों से अपने कैंडिडेट से बात भी करें, वजाहत भी मांगे और फिर वोट दें। वोट देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सवाल Please, करें, जरूर सवाल करें। जो भी सवाल आता है करें। कैंडिडेट आपके सामने किसी भी चीज के लिए खुल के सवाल करो, आप सवाल अपना आप करें इस्तेमाल उनसे। करें। जी बिल्कुल, आपको आपका कोई right है। डायरेक्शन दे रहा है उसका मतलब ये नहीं, मगर आप अपना ब्रेन भी इस्तेमाल करें और अपना हक भी इस्तेमाल करें। ये हम इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, जरूर करें और एथिक को मेंटेन रखें। जो आपके बुनियादी जो हमारे एथिक्स है उसको मेंटेन रखें, किसी पे कीचड़ मत उछालें। अगर आपको इख्तलाफ है तो सोशलाइज वे में इख्तलाफ जाहिर करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर करें, अपनी वजाहत करें, अपना इत्मीनान के बाद वोट दें। अभी टाइम है, अभी अर्ली वोटिंग हो रही है माशाल्लाह, और इस दफा बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही है, इसलिए आप जल्दी जाएं। आखिरी वक्त जो 3 नवंबर का है उस वक्त मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा रश हो जाएगा। अभी रोजाना की बुनियाद पर अर्ली वोटिंग चालू है, तो प्लीज प्लीज अपना हक इस्तेमाल करें। अब हम चले अब चलते हैं रिसोर्सेज की जी, तरफ जी, जी, जी। कि अभी सूरत हाल क्या है। एक रेंट के बारे में मुझे पता चला है कि गवर्नमेंट ने खुद हैरिस काउंटी में तो खुद कोई एक्शन लिया है, कोई हाँ देखिए, मुसलसल फेडरल फंडिंग सारे मुल्क में डिफरेंट काउंटीज में आ रही है और हर एक अपना तरीकेकार वाजे भी कर रहा है। हमारे यहाँ भी हैरिस काउंटी और फोनबेक काउंटी के पास टाइम टू टाइम फंडिंग आ रही है। अभी भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, कुछ लोगों को वेटिंग में डाला हुआ है, लेकिन उनके पास एक साथ फंडिंग नहीं है जो सारे लोगों को मिले। लेकिन हैरिस काउंटी और फोर्टबेन काउंटी रोजाना की बुनियाद पे तो नहीं, लेकिन मंथली बेसिस पे अपने अनाउंसमेंट अपने प्रोग्राम का करते हैं और उन लोगों को रेंटल या मॉर्गेज हेल्प वो देते हैं। 1200 से 1500 रुपए फैमिली को दे रहे हैं। हर एक को फौरी तौर पर नहीं मिल सकता, जिन लोगों को मिल चुका है उनको दोबारा नहीं मिलेगा। उसके पीछे आपके पास इस फेडरल गवर्नमेंट का स्टिमुलस चेक फाइनल स्टेज में एनी मोमेंट इंशाल्लाह वो आपको मदद मिल जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है, दूसरी बहुत सारी मदद अवेलेबल है। so this is only one time rent जो है वो बस हाँ वो तो एक टाइम पे मिलेगा, लेकिन ये कि उसके अलावा दूसरी पीछे से मदद आ रही है जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन एक दफा तो काफी नहीं है। ठीक है, अब ये तो मैं इस मामले में तो इसीलिए तो इलेक्शन के लिए बात होती है कि बड़े बड़े लोगों का तो पेट भर गया है और वो सारे वन टाइम फिर अगले महीने क्या करें, मतलब आम आदमी जो है अब उसके भी 2 इफेक्ट है। कई लोगों को उसकी जरूरत नहीं है, वो भी ले रहे हैं। ओके, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है मैं उस पर कोई बहस नहीं करूँ। अल्लाह करे सबको मिले, मुझे भी जरूरत होती है मुझे भी मिले, आता हुआ माल कोई नहीं रुकता है। बहरहाल जो काम की बातें हैं, तो जो ये हालात जो बदले हैं उसकी वजह से कई मसाइल पैदा हो गए। एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस तो सबसे जरूरी है। हमारे इदारे बहुत सारे ज़कात दे रहे हैं और ज़कात ले रहे हैं, वो भी अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसाइल अब भी है क्योंकि हमने उनकी जो जरूरतमंद है उनकी आउटरीच के लिए जो सिस्टम बनाया है उसमें वो बहुत नाकिस है। मैं कई दफा निशानदेही कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल काम हो रहा है। मैं इसमें तनकीद नहीं करूंगा, ये ईमानदारी से काम हो रहा है। उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट की हो सकती है, जरूरत है। डके सिर्फ इस्लामिक सोसाइटी ग्रेट एजुकेशन, दूसरे इदारे मस्जिद है माशाल्लाह फंड ले रही है और वो दे भी रही है, लेकिन उनका तरीकेकार वाजे हो तो ये जो नीडी लोग हैं वो डिवाइड हो जाए। वो एक आदमी हर जगह जाके भी मदद ले रहा है, तो हमें एक सेंट्रलाइज भी कोई सिस्टम या नेटवर्क बनाना चाहिए और मेरे ख्याल में बन चुका है या बन रहा है। तो ये चीजें मदद करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ गुर्बत है। कई लोग अभी मसला जो आया है ना जॉब्स का, कि जॉब्स नहीं है, तो जब ये थोड़ा सेटल डाउन होगा और जॉब्स होंगी क्रिएट, नई जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगे लोगों को। क्योंकि एक तो ये कि जॉब्स भी नहीं है, दूसरे ये कि लोग डरते हैं घर से निकलते हुए। कहीं भी आप जॉब करें, जिन जॉब्स पर भी आप जाएंगे, बेशुमार लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं। पीपल आर नॉट केयरफुल, यू नो, जिस तरह और लोग केयरफुल होते हैं ये होना चाहिए। पीपल आर नॉट केयरफुल, वो मास्क नहीं पहनते कई लोग, तो इसलिए भी लोग डर रहे हैं। ये फाइनेंशियल कंडीशन ये कोविड-19 से अटैच्ड है। बिल्कुल ठीक है ना, ये तो जिंदगी का अमल तो जारी रहना चाहिए क्योंकि रोजाना की दुनिया पे जो मसाइल है, एक तो कोविड के वजह से खुसूसी मसाइल हो गए कि हमें फ्री टेस्ट कहाँ से कराना है। ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ चुके हैं, लोगों के खास टाइम पीरियड में चाहिए, उसकी फीस ज्यादा है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि अगर उनके पास ओबामा केयर है या कोई हेल्थ इंश्योरेंस है वो फ्री कवर है। बहुत सारे इदारे जो हमसे रब्ता करें, महमूद माफानी को 8326601848 या वेबसाइट है helps4needy.com पे आप जाएं, वहाँ जो भी फ्री प्रोग्राम है वो मौजूद है। तो अब ओबामा
केयर भी शुरू हो चुका है वापस दिस मंथ पहली तारीख से ओबामा केयर का नया ओपन हो गया। मेरी दरखास्त है कि लोग अप्लाई करें क्योंकि बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपका कवरेज है। आपने सपोज करो 50 रुपए महीने के खर्च किए या 100 रुपए खर्च किए तो कोविड टेस्ट तकरीबन 150 से 200 का वो फ्री कवर है। फिर जो लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं उनके कई हजार के बिल आ रहे, तो आप एहतियात करके अमेरिका में हर चीज का इंश्योरेंस लेना जरूरी है। और इंश्योरेंस भी कई किस्म के हैं, गाड़ियों का इंश्योरेंस है, किसी ने आपकी गाड़ी को मार दिया उसका इंश्योरेंस नहीं है, ये सारे मसाइल हैं और इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं। आप हमसे रब्ता करें, हमारे पूरी काउंसलिंग और कंसल्टिंग हम लोग करते हैं। इसके अलावा हमने अभी नया एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम फ्री लीगल कंसल्टेशन दे रहे हैं और इट इज बेस्ड ऑन आपकी एलिजिबिलिटी पे है और उसके बाद आपको एडवाइस कर देते हैं हम और आप अपने तौर पे फिर, लेकिन अगर आप उन टीम से जो हमारे पास है उनसे काम करेंगे तो वो एक्सट्रीमली डिस्काउंटेड। लेकिन कोविड-19 का टेस्ट तो फ्री भी हो रहा है बहुत सारी जगह पे, हो रहा है, डिफरेंट किस्म के टेस्ट है और हर जगह ट्रैवलिंग की फ्लाइंग के वक्त भी जरूरत है और लैंडिंग के वक्त। हाँ, वो जो एक टेस्ट है वो 12 टेस्ट है, वो महंगा है, उसकी यूजुअली ट्रैवलिंग का 5 से 10 टेस्ट दिन है। लगते हैं हाँ, उसकी रिपोर्ट में, लेकिन कई जगह पे अगर पेमेंट करके या इंश्योरेंस के तहत वो फास्ट है। वॉलग्रीन की वेबसाइट पे भी कुछ स्पोर्ट्स है जहाँ फ्री हो रहा है। वॉलग्रीन के पास अथॉरिटी है लेकिन सारी वॉलग्रीन नहीं कर रही। कुछ जगह पे आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, अपनी लोकेशन डालें, तो वॉलग्रीन ने भी मेरे पास जो पर्सनल रिपोर्ट एक्सपीरियंस की तो वॉलग्रीन ने भी बहुत सारी मदद की है। अर्जेंट केयर आप अभी वो इब्न सीना भी कर रहा है ये काम। हाँ, बहुत सारे इदारे करे। मेरे पास जो ट्रैवलिंग की जो परमिशन है ना कोविड-19 की टेस्ट की, वो लोग भी कर रहे हाँ, हैं। सब जगह हो रही है। हमारे यहाँ शिफा में भी अभी प्रोग्राम था, अभी इंशाल्लाह शायद फोर्ट बेन काउंटी की तरफ से हमारी साइन अप क्लिनिक पे भी इंशाल्लाह करेंगे। तो अवेलेबल है, लोगों को पता नहीं, हम इसीलिए बैठे, हम एक ब्रिज है। ट्रैवलिंग का अभी तक जो है क्लियर नहीं हो सका कि ट्रैवलिंग किसी डॉक्टर से मेरा ख्याल है पूछना चाहिए। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो कहते हैं ट्रैवलिंग सेफ है बहुत ज्यादा, लेकिन आप क्या कहते हैं इस बारे में? हम ब्रेक पे जाएंगे थोड़ा मुख्तसर। बहुत सारी एहतियाती तदाबीर सारे इदारे लेते हैं। जब इदारे लेते हैं, जब आप ट्रैवलिंग करते हैं उससे 5 दिन पहले आपको टेस्ट कराना है, उनकी रिपोर्ट है। एयरपोर्ट पे जब जाते हैं तो जो एहतियाती तदाबीर है और माशाल्लाह कोई ऐसी सीरियस रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है जहाज की हाँ जहाजों में, जहाज में हाँ, किसी को इसीलिए रोजाना ट्रैवलिंग बढ़ रही है, रोजाना लोग जा रहे हैं। मेरे पास भी रोजाना की बुनियाद पे लोग टेस्ट के मामले में या किसी और मसाइल के मामले में आते हैं और वो वहां पहुंच के भी उन्होंने मुझे कहा कि इट इज वेरी गुड। पाकिस्तान जो लोग गए वो लोग भी बड़े मुतमईन है, क्योंकि जब आप प्री प्लान करते हैं और सारी एहतियाती तदाबीर के साथ जाते हैं, मास्क अपना ले जाते हैं, अपना सैनिटाइजर ले जाते हैं, तो आप जब एहतियाती तदाबीर करते हैं तो आपकी बचत के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, गवर्नमेंट या एयरलाइन भी सीरियसली इसको मेंटेन कर रही है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। तो ब्रेक का वक्त हुआ है नाज़रीन, लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। जाने से पहले फिर आपको याद दिलाऊं कि ये लाइव प्रोग्राम है, आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कम्युनिटी सर्विस में हूं फानी और मैं हूं फरा इकबाल आपके साथ। आज हम बात कर रहे थे रिसोर्सेज की और कोविड-19 के हवाले से। ऑब्वियसली ये अब हमारी जिंदगियों का एक लाजमी जुज बन चुका है इसके बारे में बात करना, अनटिल अनलेस हमारे पास कोई वैक्सीन ना आ जाए या कोई किसी तरीके से ये मुआवजाती तौर पर खत्म ना हो जाए। तो चलिए मारफानी साहब की तरफ वापस चलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या ख्याल है आपका कि वैक्सीन अगर आ भी गई तो क्या पब्लिक इंटरेस्टेड होगी वैक्सीन में? बल्कि ये सवाल मैं अपने नाज़रीन से भी करती हूँ कि अगर वैक्सीन आ भी गई तो क्या आप लोग वैक्सीन फौरी तौर पर लगवाएंगे या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी वैक्सीन जो है वो आना है, आनी तो है, आना है। अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब जो ट्रम्प साहब उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने लिलीज और बहुत सारी कंपनी को ऑर्डर कर दिया है और वो हर एक को मुहैया करेंगे फ्री। ये तो एक बात होगी, लेकिन लाखों करोड़ों अरबों लोगों को वैक्सीन लगाना, उसको एक ही वक्त में सबको नहीं मुहैया की जा सकती। इसमें कैटेगराइज होगा, प्रायोरिटी होगी कि पहले जो लोग जो है वो रोजाना की बुनियाद पे हॉस्पिटल वर्कर्स है, डॉक्टर्स है, जो रोजाना की बुनियाद पे पब्लिक सर्विस करते हैं, उनको लाना पड़ेगा। हमारे पास एक कॉलर है, तो ये कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं जी, आप ऑन एयर हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वो भी बिल्कुल ठीक है मारफानी साहब। कौन बोल रहे हैं? क्या
हुआ आपकी जॉब का कुछ हुआ जॉब मुझे मिली है, छोटी सी जॉब, अच्छा ये कि अभी टेम्पररी है। चलो फिर भी कुछ ना होने से तो बेहतर है राइट बिल्कुल आप बताएं आपके साथ क्या हो रहा है, ये जो हालात हाँ आपके कैरोलिना गुजरे का हैं, बताएं हमें कैरोलिना का आपके साथ क्या हो रहा, हम लोगों ने कैसे क्या किया, हालात है आपने वहाँ क्या पे? किया, वहाँ के क्या हालात है, थोड़ा बताएं नाज़रीन को, आपकी कोई मदद हो रही है नहीं हो रही, ये भी बताएं। मेरा ये कि मैं वो तो ड्राइव नहीं कर सकती, इसी वजह से थोड़े ज्यादा प्रॉब्लम इश्यूज मेरे हैं। और क्योंकि दरअसल अभी हमारा तो स्टेट अभी भी फेज 2 में, अभी इनिशियली फेज 3 में आया हुआ है। तो इसमें हम जो लोग हैं यहाँ के काफी अभी तक बहुत ज्यादा ये कि आपको कोई हेल्प वगैरह मिल रही है वहाँ से, किसी किस्म की गवर्नमेंट हमारी की तरफ से कोई हेल्प मिली है आपको मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली है। अच्छा तो आपको कोई हेल्प हमारी तरफ से मिल रही है? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी मतलब वायरस की हवाले से कुछ भी नहीं है सर, कोई भी एफर्ट नहीं है तो वहाँ पे क्या वहाँ पे कोई मैंने आपसे कहा था हमारी गवर्नमेंट तरफ से कोई की हेल्प मिल रही है नहीं मिल रही? पहले हमसे ये पूछ लें कि क्या आपको वहाँ से कोई किसी किस्म की गवर्नमेंट किसी को भी हेल्प कर रही है या नहीं, या सिर्फ आपको नहीं मिल रही? ये मुझे नहीं पता, क्योंकि एक तो ये कि मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और जिन लोगों से मेरा रास्ता है वो लोग मतलब इस तरह की कोई किसी रिसोर्सेज का हमें पता नहीं। मुझे जो रिसोर्सेज बाबा ने बताए थे मैंने उसके हवाले से अप्लाई किया था, मगर उससे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इतनी ज्यादा उसके आउटरीच नहीं है उसकी। जी तो मारफानी साहब ने मारफानी साहब में होगी, मगर हमारे मेरा इतना छोटा सा सिटी है, लेक्सिंगटन का नाम है और डेविडसन काउंटी है। कुछ इसमें यहाँ पे मुझे कुछ भी मतलब पर्सनली मुझे कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एफर्ट नहीं मिला, कुछ भी। और बच्चों को भी नहीं है कुछ, मतलब ये था कि उन्होंने कहा कि देखिए हाँ सिर्फ एक चीज में उन्होंने हेल्प किया है, जो देखिए था तो देखिए की चार्जेस उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिए। अच्छा वेव ऑफ कर आपको फ्लोरिडा से भी पिछले महीने मैंने आपको चेक भिजवाया है और आपको हमारी तरफ से भी तो आपको मदद मिली है, क्या नहीं मिली है या नहीं मिली है, या हम मदद करें या नहीं करें? मुझे जो है कि जब से वायरस शुरू हुआ उससे पहले भी, जब वायरस शुरू हुआ था तो मेरी जॉब चली गई थी, तब से बाबा ही मेरी हेल्प कर रहे हैं। और एक और बंदा था जो बाबा किसी टीवी के जरिए उन्होंने बाबा को कॉल किया और उससे अप्रोच हुई तो उन्होंने भी हमारी मदद की फ्लोरिडा से। और यही हमारा एक, इसके अलावा मतलब हमें कोई यहाँ पे लोकल जिन लोगों से मेरी बात हुई है, एक मुझे लैपटॉप चाहिए था, वो बाबा ने कहा कि आप ग्रुप में डाल दें, तो वो मैंने ग्रुप में डाल दिया। तब शोरूम साहब है उन्होंने मुझे लैपटॉप दिलवाया था जब मेरा लैपटॉप खराब हुआ था, जो जॉब अप्लाई कर रही थी मैं। तो ये रिसोर्सेज जो है नॉर्थ कैरोलिना से भी हमें टूल्सन से टेक्सास से मिल रहे हैं। थैंक यू। तो रोजाना की बुनियाद पे आपको मदद तो मिल ही रही है, मगर आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आज में एक गुजारिश करना चाहती हूँ जी कि जो भी लोग हैं आप लोग कितने लोगों की मदद करते हैं बाकी इदारों से कह रही हूँ, तो आप लोग जरा सा थोड़ा सा भी एक इंडिविजुअली एक जो मेरी तरह हुआ तो सिंगल वर्किंग मदर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बाकी बजाय मैरिज ऑफर करने की, बजाय कुछ दूसरी चीजें ऑफर करने की, वो मुझे हेल्प ऑफर करें। एक बाबा मार्फत के अलावा जो भी अप्रोच आता है हेल्प
नईमा, थैंक यू. हाँ, मैं इस पर बात करती हूँ अभी. थैंक यू सो मच. बल्कि इस पे मैं बात करती हूँ अभी इसी टॉपिक पर कि नईमा का कहना ये है कि जो सिंगल मदर्स हैं, और मैं ये टॉपिक कई बार लेकर आई और लेकर आना चाहती हूँ, बार बार इस पर बात करना चाहती हूँ, कि उसने बड़ी अच्छी ओपनली ये बात कही कि सबसे पहले जो हेल्प आती है वो ये कि शादी के लिए ऑफर कर देते हैं लोग. तो जरूर करें ये ऑफर, लेकिन आप पहले कोशिश करें कि वो जो भी खातून है वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है, ये इज्जत नफ्स का मामला होता है कि आप मे भी वो शादी नहीं करना चाहती, वो अगर शादी करना चाहती होती तो वो उसी शादी में रहती जहां से वो निकली है बाहर. वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं और अपने आप को सपोर्ट करना चाहती हैं पहले, क्योंकि ये डिसीजन जब आप खुद अपने सेल्फ के साथ हो, जब तक आप प्रॉब्लम्स में हैं, अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, खातून जो भी है अपने मसाइल में घिरी हुई है, बच्चों के साथ अपने फाइनेंशियल मसाइल में, वो ये डिसीजन मजबूरी की हालत में तो लेगी, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं ले सकती. तो अगर आप चाहते हैं कि वो मजबूरी की हालत में ना ले ये फैसला आपके हक में, बल्कि आपसे शादी का फैसला जो है वो पूरे अपने होशो हवास में करे, तो कोशिश करें कि पहले उसको सपोर्ट करें, उसके पैरों पर उसको खड़ा होने दें, उसमें जो भी आप हेल्प कर सकते हैं वो करें सिंसियरली. और उसके बाद अगर वो ये फैसला करती है कि ठीक है वो मैरिज प्रपोजल जो है उस पर गौर करेंगी, तो फिर आप बेशक उसको जो है वो प्रपोजल दें अपना. देखिए, जो आपने बात की बिल्कुल सही बात है कि पहले हमें उनको रिहाब करना होता है और उनको एम्पावरमेंट देनी है. जो खवातीन हमारे पास आती हैं, हमारा पहला गोल है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि वो एडिक्ट ना हो मदद मांगने की या मदद की, वो सेल्फ रिलायंस पे आ जाए, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए. जितनी खवातीन को हमारी तरफ से मदद मिलती है कि हम कोई डोनेशन नहीं लिया आज तक 30 साल में, ये वाजह कर दूं, कोई डोनेशन नहीं लिया, लेकिन अल्लाह का करम है बहुत सारे लोग हमारे पीछे, हमने लोगों को गाड़ियां दिलाई. इन बच्चियों को खुसूसी तौर पे, मैं चाहे बाहर है चाहे हमारे शहर में है, कोशिश करता हूं कि इनको रिहाब किया जाए, इनको जॉब की ट्रेनिंग मिले, इनको फ्री एजुकेशन क्लासेस कहाँ से मिलती हैं, इनको गाड़ियां कैसे क्वालिफाई हो सकती हैं. तो ये सारा चीजें कि हम लोगों को मछली न दें, उनको टूल दें और मछली पकड़ना चाहिए. मैं अपने सारे इदारों से दरखास्त करता हूँ कि जो लोग ज़कात लेके मदद करते हैं वो ऐसा फाइनेंस प्रोग्राम दे ताकि उनको आप वो जरूरी टूल मुहैया कर दे ताकि ये दोबारा मांगने की सूरत में ना आए. हम लोग ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, और बहुत सारे जरूरतमंद जो काम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे रिहाब उनको पढ़ना है, उनको क्वालिफाई करना है, उनको ट्रेन करना है, उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिलाना है, उनको गाड़ी दिलाना है, उनको ESL की क्लासेस देनी है, उनको फ्री एजुकेशन देना है. गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे चाइल्ड केयर है, ब्यूटिशियन है, और बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स है. असल में ये काम बहुत जरूरी है और ये हमारे इदारों को ये ज्यादा करना चाहिए. फानी साहब, इसमें ज़कात देकर जान छुड़ा लेते हैं, एक बहुत बड़ा मसला है इसमें, ये जो आपने बात कही है ना, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों तक, ये जो बहुत ही महदूद रिसोर्सेज के साथ ये खवातीन जो सिंगल मदर्स हैं, इन लोगों तक वो बातें पहुंचती नहीं है. जो आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं ना, से कोर्स होते हैं और चीजें होती हैं, देयर इज अ लीडरशिप रिक्वायर्ड हियर. कोई लीडरशिप चाहिए जो इनको गाइड करे. दे डोंट नो. एक तो इनकी उम्रें कम होती हैं बहुत, आप ये देखें कि एज भी कम होती है. मैंने तो बहुत ऐसी खवातीन देखी हैं सिंगल मदर जिनकी एज बहुत कम है, उनको पता ही कुछ नहीं है, उनको तो अभी अपना आप नहीं संभाला जा रहा है, उनसे बच्चे संभाले नहीं जा रहे, रिसोर्सेज कैसे उनको पता चलेंगे. लेकिन रिसोर्सेज के लिए मैंने 30 साल लगाए और अभी रोजाना की बुनियाद पे वो वेबसाइट है www.helpsforneedy.com, helps HELPS4.com. उस पे तकरीबन सारी रिसोर्सेज गवर्नमेंट की सारी किसको मिल सकती है, उसका फोन नंबर है, उनकी वेबसाइट है. अभी अवेलेबल हूँ, मेरा फोन नंबर 8326. अभी आपने सुना नहीं, उसके पास लैपटॉप नहीं था, सुना है ना आपने. हाँ, वो हो गया. मकसद ये कि जिन जिन लोगों को मालूमात बढ़ेगी, जो लोग हमारे कार्य खैर के काम में शरीक होंगे, और ज्यादा से ज्यादा आपसे मालूमात पहुंचाए. असल में इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम लोगों के दरमियान ब्रिज है. तो किसी भी मसले के लिए आप मुझसे रब्ता करें. मैंने आपसे कहा कि हमारे पास फ्री लीगल सर्विसेज है, इमिग्रेशन के केसेस है, वुमन एब्यूज केसेस है. मेरे पास लॉयर की टीम है माशाल्लाह. अभी अनाउंसमेंट में आज भी कर रहा हूँ कि आप मुझसे रब्ता, किसी भी किस्म का लीगल है, हम आपको कंसल्टिंग देंगे और लो कॉस्ट, अगर आप एलिजिबल हुए. समझ गए ना.
तो और आप आपको लो कॉस्ट मुझसे भी रब्ता मुझसे भी कर सकते हैं रब्ता, आप मुझसे भी कर आप ये सकते नंबर हैं। पे फोन करें आएगा। हाँ, इस नंबर पे कॉल करें, आप मुझसे भी रब्ता कायम कर सकती हैं, खवातीन स्पेशली, और मैं आपको बहुत तरीकों से और तरीकों से भी मदद कर सकती हूँ। मारफानी साहब रिसोर्सेज देते हैं, लेकिन आपको मेंटली और गाइडेंस चाहिए हो अगर, तो मैं इस तरीके से भी आपकी हेल्प कर सकती, काउंसलिंग भी कर हमारा सकती हूँ। मेंटल हेल्थ भी फ्री अवेलेबल है, हमारे पास स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट है, आप मुझसे रब्ता करें, मैं उनके साथ उनको कनेक्ट करूंगा, वो इंशाल्लाह फ्री आपकी टेली मेडिसिन के तौर पे आपको कहीं भी है आपकी मदद करें। उसके लिए आपको फोन करना पड़ेगा, टेक्स्ट करना पड़ेगा, आपका नाम, आपका फोन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ 8326601848, और मेरी वेबसाइट है helpsforneedy.com, वहां भी ईमेल है, उस पर आप भेज दें, इंशाल्लाह हम हमारे डॉक्टर्स खुद आपसे रब्ता करेंगे और आपको प्राइमरी केयर जो जरूरी है प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं, मैं उसकी गारंटी नहीं कर सकता। इसी तरह जो वकीला है माशाल्लाह कई लोग हैं जो फ्री हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, हम आपके साथ ज्यादा नहीं, आपको रास्ता बता देंगे और आपको कम से कम पैसों में आपके जो इमिग्रेशन के मसाइल हैं या जो भी मसाइल है, मतलब बिजनेस है। चले, अब ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बीच में मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं फिर एक बार आपको याद कराऊं कि मैं भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ और बहुत डिफरेंट तरीकों से। यहाँ से आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, लेकिन मेरे रिसोर्सेज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और जॉब्स के हवाले से खवातीन की या उनको गाइडेंस के हवाले से आई कैन हेल्प यू फॉर दैट टू। आप इस नंबर पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कम्युनिटी सर्विस विद महमूद वारफानी और मैं हूं फराह इकबाल। हम बहुत दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे, बल्कि हमारे साथ किसी ने शेयर भी किया, कैरोलिना से नईमा ने अपने ख्यालात का इजहार किया कि किस तरह बाकी स्टेट्स में प्रॉब्लम है। तो मैं अप्रिशिएट कर रही थी इस स्टेट को, टेक्सास को, इवन गवर्नमेंट लेवल पर भी मैं अप्रिशिएट कर रही थी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हम फोर्ट बेंड काउंटी में रहते हैं और फोर्ट बेंड काउंटी के जो सिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, काफ़ी लोगों के साथ मिलकर कोशिश की है उन्होंने कि अपनी काउंटी को बेहतर बनाएं। हैरिस काउंटी में भी अच्छा काम हुआ है, तो आई थिंक इट्स अ गुड जेस्चर और उनको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए इस बात के लिए। एक और सवाल मेरा आपसे मारफानी साहब के, हमने शुरू में बात की थी कि हम क्यों ना अपने इदारों को ठीक करें, और ये जो हम सालों साल से हम कह रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं मगर कर कुछ नहीं रहे इस बारे में कि हमारे पास हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही उस तरीके से, हमारे पास रिसोर्सेज क्यों नहीं है उस तरीके से जैसे बाकी कम्युनिटीज एक रिसोर्सेज लेकर आती हैं अपने लोगों के लिए। तो थोड़ा बहुत जो हमने और आपने स्टार्ट किया चीज को कि हम अपने पर्सनल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके कोई ना कोई थोड़ी बहुत जो भी हमसे हो बन पड़ता है, हो सकता है, वो हेल्प हम करते हैं। तो ये जो मिसयूज है इदारों का नॉन मेरिट लोगों के साथ, इसको ये कैसे चेंज होगा? मुझे लगता है ये इतना मुश्किल काम है कि ये नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है? देखिए, तो बातें करना, हाँ, एक्शन, दोनों में बहुत हम फर्क लोग है। अपने इदारों के, जैसे हमारे यहाँ IHH है, इसमें इलेक्शन में लोग घरों पे बैठे रहते हैं, वो फिर बाद में शो में, इसमें सबसे पहले जिम्मेवार मैं हूँ। हम लोग अपना, अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे आपको रोकूं, होल्ड योर थॉट। इसमें मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है जो सारे लोग मुझसे भी करते हैं और मेरा अपना जाती सवाल है, ये इतनी महंगी मेंबरशिप क्यों है इन इदारों की? कोई नहीं, 10 रुपए से 40 रुपए है, और क्यों है? वाई जब आप ज़कात भी ले रहे हैं, नहीं, अलग बात है, ये सवाल है, मेंबरशिप फीस नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये इशू है, हम ये इशू है, उनको रिक्वेस्ट करते जी हैं बिल्कुल, मेंबरशिप वेव ऑफ करें, खत्म करें, इसीलिए बहुत सारे लोग मेंबर नहीं बनते। उसके अलावा भी मेंबर भी कौन सा वोट देने आते हैं। सवाल तो असल है फरा कि हमारे लोग, हमारे तकरीबन 10,000 के करीब मेंबर रजिस्टर्ड है और हार्डली 1200 से 1500 आते हैं, 300-400 वोट 10-15 वोट से जीत जाते हैं, और ये फिर सारे ब्लैक शीप्स या ये मिसयूजर है जो कि इम्प्लांट किए गए इदारों में, वो बाकायदा डिफरेंट NGOs के तरफ से वो हमारे इदारों में घुसे हैं, उनको पता है, वो चंद लोगों की मदद करके उनको जो है वोटिंग उनकी लेके उनको घरों से उठा के। हमारे साथ एक कॉलर है, तो ये मसला तो है, हम शरीक नहीं होंगे। आप ऑन एयर हैं? वालेकुम सलाम। जी जी, मैं फरा बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? सब खैरियत है? आप देख रही हैं प्रोग्राम हमारा?
जैसी शख्सियत हम लोगों का दिल रखती है, इतने काम करती है, बस मैं तारीफ ही नहीं आपने फोन किया था। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप इस तरह कोई कॉल करेगा मेरे लिए। नहीं नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारी हैं आप, आपने इतने बरकत मेरी मदद की थी। जी जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम बहुत हद तक सही हो गए, मैं आपको क्या बताऊं। चलो शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। और ये खुशाइन बात है, और मैं बहुत खुश हूँ। चलो एक इंसान की लाइफ से थोड़े मसले जो है वो कम हो गए। और चले अगर मैं मसले में बहुत दुआओं में आपको याद रखती हूँ, और आपके जो लोग आपके साथ हैं उन सबको उनको तो बहुत अप्रिशिएट करने के काबिल हैं वो लोग, इसलिए कि वो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करते, ना करना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात जी बड़ी बात है, मैं आपको पूरे बड़े दिल से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका देखने का, तारीफ करने का। फैलाते रहें इस प्रोग्राम को, आप लोगों तक पहुंचाते रहें, और देखते रहें इसी तरीके से, हमें बहुत खुशी होगी। यही इंकरेजमेंट हमारी ताकत बढ़ाता है। और आप जरूर शरीक हो, हमें मशवरे भी दें, हमारी कोताहियों पे भी नजर रखें, हाँ। हमारी कमजोरियों आपकी कोई अगर बड़ी बात है, कोई सजेशन है, कोई मशवरा है तो आप दीजिए। बस ये है कि आप लोग ऐसे काम हमेशा अल्लाह आप जैसे लोगों को जिंदा सलामत रखे और ये काम करते रहें। आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बस ये है कि ये कम्युनिटी बहुत खूबसूरत काम कर रही है जो आपको करना है। अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत, ताकत, सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान दे। बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं जो है वो हमारे साथ रहेंगी। अल्लाह हाफिज। तो हम बात कर रहे थे कि हमारी शिरकत, जी हम लोगों की हर शख्स की जिम्मेवारी है कि शिरकत। हमारे यहाँ लोग वोट डालने नहीं आते। इवन देखिए आज नेशनल इस साल देखे जो शौरू पैदा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करें। अब आईएचए के भी इलेक्शन होने वाले और दूसरे इदारों के भी इलेक्शन होने वाले। लोग अपना राय अख्तियार इस्तेमाल करें और सही लोगों को इस्तेमाल लाए। कितने अच्छे लोग जो चुप जाते हैं वो काम नहीं कर सकते। मैं कभी काम नहीं कर सक रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं, सब फर्ज करें मैंने वोट देना है, मुझे ये बताएं कि मैं कैसे चूज करूं कि कौन सही है, क्योंकि लोगों ने तो इतने नकाब चढ़ाए होते हैं अपने ऊपर, तो कैसे पता चलेगा कि ये सही है बंदा या नहीं है? देखिए आईएएस का एक सिस्टम है, वो पहले नॉमिनेशन कॉल करते हैं हर मस्जिद से, और वो जोन से हमने कभी नहीं देखा। मैं आप एक आम आदमी की हैसियत से कह रही हूँ, मैं एक फरा इकबाल की हैसियत से नहीं कह रही। एक आम आदमी जो मस्जिद नहीं जाता, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही है, और मैं हमेशा कहती हूँ हमें नहीं पता कब होते हैं, कौन नॉमिनेट होता है, कब नॉमिनेट होता है, कोई पता नहीं। ये एक बड़ा अलमिया है जो कि हमेशा से रहा है। हम इसी डर में रहेंगे कि बाहर हमारी बेइज्जती होगी, हमारा ये हो जाएगा, हमारा नाम खराब हो जाएगा। ये बहुत हो चुका है, ये दादरी छोड़ दे। अब आपने ओपन आना होगा। आपके जो लोग कंटेस्ट करना चाहते हैं, हम तो इंशाल्लाह हमारा HMI ग्रुप है, हम तो सवाल पूछेंगे। सारे लोगों का नॉमिनेशन पेपर आ रहा है इस साल, खुसूसी तौर पे आईएचए के इलेक्शन के लिए। सारे लोग उसमें नॉमिनेट होंगे। आपने एक एक बंदे को चेक करना है, और जो सवाल हमने पहले से इश्यू किए हैं, मिसयूज ऑफ पावर्स, मिसयूज ऑफ मनी, वेस्टेज एंड ड्रेनेज ऑफ मनी इन मेनी मसाजिद एंड नॉट ओनली इन आईएचए, इन मेनी मसाजिद, ये सारे सवाल इश्यू करना पड़ेगा। हम लोगों ने पेनी जमा किए, और आज आके देखें इन इदारों में सारे वेस्ट हो रही, मिलियंस ऑफ। अच्छा मारफानी साहब, ये बताएं मुझे, मेरे नॉलेज के लिए ये बात बताएं कि ये जब किसी भी 501c में इलेक्शंस होते हैं, किसी ऐसे इदारे में जो कि पब्लिक सर्विस इदारा है, तो क्या उन्हें कोई सर्कुलेट नहीं करना होता इलेक्शंस के बारे में ऑफिशियली, कि अखबार में दे दें कि जी ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, कोई बंदा हिस्सा लेना चाहता है, अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है, कोई कैंडिडेट बनना चाहता है, तो ये डेट है उसकी नॉमिनेशन की, जैसे कोई और दूसरे PAGH करती है हमेशा ऐसा कि उनका अखबार में इश्तेहार आता है पहले, और उसकी एक डेडलाइन होती है, 1 महीने का टाइम होता है। तो यहाँ मेंबरशिप की भी कोई डेडलाइन नहीं पता चलती, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? असल में मैं खुल के बात करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल कंजर्वेटिव थॉट के तहत चल रहा है, और इसको अब नहीं आना चाहिए, खुल के आना चाहिए। हमारा इतना बड़ा इदारा है, बिल्कुल जैसे फरा आपने कहा, इन लोगों की आउटरीच को बढ़ाना है। आम आदमी को पता ही नहीं है, वेबसाइटों पे डाल देना या मस्जिदों में सर्कुलेट कर देना या छोटे छोटे ग्रुपों में अनाउंस करना, उसके बजाय खुल के आए कि भाई आईएचए के इदारे के इलेक्शन हो रहे हैं, और जिस भी काबिल आदमी को इलेक्शन में आना है वो आ जाए खुले आम। हाँ, बिल्कुल सही है। मुझे भी अभी तक नहीं पता है, क्योंकि
पे मैं मुंसलिक हूँ तो मुझे रोजाना की बुनियाद पे पता वही मैं कह रही हूँ ना जी कि मैं फरा इकबाल की हैसियत से बात नहीं कर रही, ये मैं वो बात कर रही हूँ जो फीडबैक लोगों का है, जो मेरे पास लोग उस कंटेस्ट करेंगे उनका हमें रेज्यूमे चाहिए, उनका बैकग्राउंड चाहिए, उनसे एक ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल। आप हमारे साथ पास आए, हम भी देंगे इंशाल्लाह कि वो आके बताएं, हमें जवाब देंगे। मेरे पास सवाल है, हम पूछेंगे भाई आप इन सवालों का क्या जवाब है, फिर हम सिलेक्ट करें। अब हमें लेटेस्ट टेक्निक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जी बिल्कुल। अब ये छुप छुप के कमरों में बैठ के बगैर अनाउंस किए या एनजीओ के थ्रू ले आना, ये चलेगा नहीं ज्यादा, ये कहीं भी नहीं चलेगा। और अब हमारी सोच बदल रही है, इस दफा तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। इस दफा नहीं, तो देखो पहले से क्या होगा, ये हो जाएगा। अरे दुनिया क्या, हमारे को कोई पानी का गिलास बना नहीं है, हमें अपनी मदद आप करना पड़ेगी। हमारे मल्टी $millions के कलेक्टिव रिसोर्सेज सारे इदारों में, IHH है, अल्लूर है, मस्जिद फलानी है, सारे इदारों के पास आप उन रिसोर्सेज बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए मल्टीप्लाई करें, हर आदमी अपनी बिल्कुल। तो आप अब लोकल आज बड़ी बड़ी कंपनियां मर्ज होके कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रही है ना, तो एक प्रोजेक्ट बनाए वो सारे लोग उसमें मर्ज हो जाए, ताकि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में प्रोफेशनलिज्म आ जाए, कम से कम पैसों में आपके लिए बेहतरीन सर्विस दे। ये सोच कब आएगी, कब प्रोफेशनल आएंगे? इतने बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े आउटरीच करें, सबको बताएं और ओपन करें, वो कम से कम हमें बताएंगे, उसको आप इधर टेलीफोन करके अनाउंस कर सकते हैं। मैं आपको इजाजत देता हूँ, आइए प्लीज, लीडरशिप को मैं इनवाइट करता हूँ, आइए और या एक्सप्लेन करें कि जो हालात है उसमें आपकी जिम्मेवारी कितनी है और मेरी जिम्मेवारी कितनी है, और मुझे क्या करना चाहिए कि ये न हो, आपको हम क्या कहें कि ये न हो। जब तक आप मिलकर हम साथ नहीं बैठेंगे, ये मसले कौन हल करें? ये हमारे मसले, हमारे लोग सफर कर रहे हैं, हम लोग पैसे दे रहे हैं, हम उन लोगों के लिए पैसे दे रहे हैं जिनको, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रहे या सही तरह से नहीं पहुंच रहे। $billions हमारे मस्जिद में जाया हो चुके हैं, कई मस्जिदों में निशान देकर मैंने फोटो तक लगा दिए। और एक और बात ये, इसमें एक पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि सिटी ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग होनी चाहिए, जो कि इसी सूरत हो सकती है जब लीडरशिप बहुत फेयर हो और बहुत ऑनेस्ट हो। तो कोशिश करनी चाहिए कि बाहर से ज्यादा रिसोर्सेज अपनी कम्युनिटी में लाए जाएं, ये सोचे बगैर कि इसको फायदा हो रहा है या उसको फायदा हो रहा है, ये सोचे जाती मफाद से बालातर होकर ये बातें करनी होंगी। अगर हम चाहते हैं कि अपनी कम्युनिटी को बेहतर करें, आगे लेकर चलें, तो जाती मफाद से बालातर होकर सोचना होगा हमें। बहुत सारी बातों में ये कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स और रेगुलेशन का ताना दे के एक्शन नहीं। अरे भाई, ये कोई कुरान शरीफ तो है नहीं, हाँ, ये खुद बनाया है आप हमारी सहूलतों के लिए उसमें अमेंड करें, मगर हमें ये कहे कि ये कानून नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। एक आदमी चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, सारी दुनिया को पता है, और आप उसको निकाल नहीं सकते। और ये कई लोगों ने किया है, दंगा सबको पता है, लेकिन आप लोग के पास बहाना है रूल्स रेगुलेशन। व्हाई दिस टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन? अच्छा ये बताएं मारफानी साहब, चले इसी पर मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपका क्या ख्याल है कि उस आदमी को या उस शख्स को क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? देखिए, बहुत सारे आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, एक आदमी का मसला नहीं होता, उसके पीछे भी कई लोग उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है? अच्छा, इंटरेस्ट है। आप इस पर खुल के बात करेंगे तो ये बात बढ़ रही है, लेकिन हर जगह इन्फ्लुएंस, हमारे बहुत सारे हमारे IHJ को NGO इन्फ्लुएंस करे। और भाई IHJ जो इदारा है उसको सियासत के से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हमारे जितने इदारे हैं वो सियासत से पाक हो, उनके जिम्मे जो काम है वही करें, उसके अलावा ना करें। अगर आपने वुमेन शेल्टर बनाया तो प्लीज वुमेन शेल्टर करें, आपने वुमेन केयर सेंटर बनाया और किसी वो काम करें। इसमें वुमेन शेल्टर में तो मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके साथ किसी ऐसे लोगों को मुंसलिक करें जिनका पैशन हो, जो वाकई इंटरेस्टेड हो वुमेन शेल्टर को बेहतर करने में, औरतों की हेल्प करने में। भाई मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा वुमेन अब्यूज केसेस मेरे पास आते हैं माशाल्लाह, कुछ इदारे में साथ काम, लेकिन मुझे अपने इदारे में जाने नहीं दिया जाता है। क्यों? कि मैं जो मदद दे रहा हूँ वो मेरा नाम हो जाएगा। मैं साफ खुल के बात कर रहा हूँ, इतनी रिसोर्सेज है कि हमारे इदारों में जो लोग ठहरते हैं वो गवर्नमेंट की बहुत सारी हेल्प। मैं बहुत हैरान हुई आपकी ये बात सुन के, बल्कि मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि क्या इतना बड़ा काम जो है वो सिर्फ एक छोटी सी फोटो आपके लिए नहीं होगा? इज इट ट्रू? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ 2 आदमी करना चाहता हूँ। मैं कोई बड़ा ठेकेदार भी नहीं हूँ, न मुझे कुछ पता है। मैं तो वो दुखों में घिरा हूँ, और क्योंकि खुद दुखों में से गुजरा हूँ, तो जो लोग आता है मैं इनकी मदद बाय ऑल मीन करने की कोशिश। चले मारफानी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपकी आज की तमाम बात का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने
تھوڑے سے آپ ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, ظاہر ہے دل کو لگتی ہے, چوٹ پڑتی ہے, چوٹ پڑنے پہ تو پتھر بھی صدا دیتا